Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will discuss, we will talk, we will exchange that kind of exchanging which putting in my minds with intervals. And now I will deliver the very important topic and lesson through helping lesson your favorite channel. And please who viewers those new on my channel, please subscribe this and share this too. Thank you very much. तो फॉरेन पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, डिटर्मिनेंट्स एंड व्हाटसोएवर. खैर ये तो बाद की बातें हैं. पहले एक फॉर अ टिपिकल स्टूडेंट, फॉर अ ऑर्डनरी स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो what is foreign policy, why is it necessary, where foreign policy exists, who formulate foreign policy, where who the policy makers, uh, what kinds of institution behind the foreign policy, etc. And what is the basic role of establishment in case of foreign policy of any country, and how this all kind of manufacturing takes place for the country, national integrity, her defense, and geopolitical importance. First of all, what is foreign policy? Keep in mind there are two words, foreign and policy. Now, when we see in nature, according to Almighty Allah regulations, it is very common, it is very natural that one individual wants and one individual keeps and one individual like to play attachment to another individual. Like this, a country can't exist without any kind of attachment with any country. So in this way, there are two main extremes in the world power. First one is strong countries, and other aspect is weak countries. So now, what is foreign policy? Foreign policy means the foreign relations. Now, first of all, you keep in mind the first thing is relation, then we will see the policy. Policy means the special programming, special initiative, special arrangement, and special precautions by any country for its for her existence, for her security, for her external threat protection, internal threat protection, and whatsoever. नाउ जैसे हम कहते हैं कि एक फ़र्द जो है दूसरे फ़र्द के साथ उसका तालमेल या उसकी अटैचमेंट जो है इट इज़ सो कॉमन, इस तरह मुल्कों का भी एक दूसरे ममालिक के साथ अटैचमेंट का होना एक फितरी बात है. तो जैसे हम कहते हैं कि कोई अपनी सारी ज़रूरियात अकेले पूरी नहीं कर सकता, इस तरह कोई मुल्क जो है अपनी सारी ज़रूरियात, अपनी सारी अरेंजमेंट्स, अपनी सारी जो है फुलफिलमेंट्स पूरी नहीं कर सकता, भले वो बड़ा ताकतवर मुल्क हो लाइक अमेरिका एट्सेट्रा. तो पड़ोसियों से हम स्टार्ट लेते हैं. फ्रॉम बिगिनिंग टू नेबर्स, इट इज़ वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी नेचुरल कि पड़ोसियों के साथ जो है अटैचमेंट ये एक इट इज़ सो कॉमन एंड सो नेचुरल फिनोमेना. यानी पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसियों के साथ एक अटैचमेंट होती है. अच्छी है बुरी है वो हालात, आलमी सियासत, रवैयों और मुल्क की जो आइडियालॉजी है उस पर बेस करती है. फिर जब हम फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन रिलेशंस के बाद हम फॉरेन पॉलिसी का लुक देते हैं, कहने को ये दोनों एक हैं लेकिन क्रिटिकली इनका आपस में बड़ा जो है फ़र्क है इनमें. तो नेबर्स से स्टार्ट लेकर आप फिर सबसे पहले उस मुल्क की आइडियालॉजी को देखते हैं कि वो मुल्क मुसलमान मुल्क है तो उसकी अटैचमेंट मुसलमान ममालिक के साथ एक कुदरती अमर है. अगर एक मुल्क जो है वो गैर मुस्लिम है तो उसकी अटैचमेंट गैर मुस्लिम ममालिक के साथ एक फितरी अमर है. पड़ोसी जो है वो जैसे भी हैं, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं,
मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उनके साथ अटैचमेंट का होना 50-50 चलता रहता है, उसके बगैर भी चारा नहीं है। तो फॉरेन पॉलिसी का मतलब व्हेन अ कंट्री अडॉप्ट द स्पेशल अरेंजमेंट एंड द स्पेशल fulfillments for her security, existence, national interest, for her assets, for her liabilities, for her natural resources, for her interest, for her honor, for her public will, for her security, for her defense and trade, for her opportunities, for her specific interest. So this kind of specialty is called policy. When this policy adapt to the outdoor country for abroad country, neighbor country, whether or not a neighbor country, this kind of policy is called me फॉरेन पॉलिसी। अब वाई इज इट नेसेसरी? इट इज़ सो नेसेसरी। अगर दुनिया का कोई भी मुल्क ना भी चाहे फिर इसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। अब नॉर्थ लाइक नॉर्थ कोरिया, वी सी नॉर्थ कोरिया इज सो remote in and so in deep कॉर्नर साइड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट उसकी भी फॉरेन पॉलिसी जो है नेबरिंग में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले करती है। फिर वो मालिक जिनके पास ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ा जो है वो काउंटर होती है, बड़ा वो मैयर करती है। फिर नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल सिक्योरिटी में ये फॉरेन पॉलिसी या जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें एक मुल्क की दखल अंदाजी और अपने मेयार के मुताबिक अपनी चीज़ों और अपनी कमियों को पूरा करना और अपनी ताकत को दूसरों पर हावी करना, ये भी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब फॉरेन पॉलिसी को कौन तरतीब देता है? तो मैंने जैसे बोला पिछली वीडियो में कि स्टेट इंस्टीट्यूशन जो हैं, स्पेशली द आइडियोलॉजी ऑफ दैट वेरी कंट्री plus the lawmakers, the parliament and the policy makers of foreign offices and even the security institutions, these basic institutions manufacture and fabricate the foreign policy according to the time and situation, according to the politics, according to the resources, according to the public will. अब ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्यों है, कैसे है, तो ये मैंने तो बताने की कोशिश कर दी। तो अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फॉरेन पॉलिसी का होना जो है, मजबूत होना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के बाद दूसरा बड़ा मेजर जो सेगमेंट है वो आ जाता है इकोनॉमी। अब व्हेन वी सी द soundful and very solid country in case of economy, it means that their foreign policy is very solid and they adopt their foreign policy according to the resources. तो उसमें फिर मुल्क के कवानीन और मुल्क की जो डिपेंडेंसी है अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, वो मुल्क अच्छी तरह जो यूटिलाइज़ करता है अपने ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज, तो फिर उसकी इकॉनमी जो है एक ऐसा जो है फॉरेन पॉलिसी टूल बन जाती है जो उस मुल्क की मईशत को भी आगे बढ़ाती है और उस मुल्क का इकनॉमिक कम्युनिटी में उसका एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो सादा मतलब यूँ है कि किसी फ़र्द की जो ज़रूरियात हैं वो एक मुल्क की ज़रूरियात भी हैं। किसी फ़र्द की जो मजबूरियाँ हैं वो एक मुल्क की मजबूरियाँ भी हो सकती हैं। किसी फ़र्द के लिए जो ख़तरा है वो उस मुल्क के लिए भी ख़तरा हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक ज़रूरी बात समझें कि किसी मुल्क की कमज़ोरियाँ और किसी मुल्क की ताकत वो उसकी फॉरेन पॉलिसी पे बड़ा अहम असर डालती है।
अगर मुल्क की कमज़ोरियाँ या मजबूरियाँ हैं तो उसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी सेंसिटिव होगी। और अगर मुल्क बड़ा इकोनॉमिकल साउंड है, बड़ा सिक्योरिटी और पॉलिटिकली बड़ा उसका एक उस खत्े में एक रोल है, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी बड़ा मैटर करती है। तो मुख्तसरन ये बात हुई कि इन शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की दुनिया में इकॉनमी जो है वो फॉरेन पॉलिसी के फैसले तय करती है। इफ़ अ कंट्री इज़ वेरी in good position for economic point of view, for her resources, for her manpower and overseas citizen power, then a country can manage her foreign policy very well. तो फिर सिक्योरिटी, क्योंकि इकॉनमी अगर ठीक है तो सिक्योरिटी भी ठीक हो सकती है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो अगर पीसफुल है तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है वो ऑटोमेटिकली उस मुल्क के तमाम मसाइल को कवर कर देती है और उस मुल्क को सिक्योर बना देती है। थैंक यू वेरी मच। मेरा अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको फुल वॉच कीजिए, इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यू आर माई एसेट्स, यू आर माई player, and you are my pride. Thank you very much. Allah Hafiz.